حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے کھپتی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہیں دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئیں تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ سماریا فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا جو نیک خاتون تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقت اور مضبوطی دی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کی لڑائی دیکھی، ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا کھپتی۔ اسرائیلی نے مدد مانگی جس پہ موسیٰ نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے ہاتھ سے کھپتی کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل نہیں تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے مدد مانگی۔ آپ نے اس سے کہا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے کھپتی کے طرف گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا، کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس سے آپ سمجھ گئے کہ کل کی بات پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ پاورڈ بائی ڈبورس
ये फिरौन के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का हुक्म सुनते ही दरबार से निकलकर हजरत मूसा की खिदमत में पहुंचा और उनसे सारी बातें बताईं। उन्होंने सलाह दी कि वे अपनी जान बचाकर मिस्र से भाग जाए और जहां पकड़ न हो सके वहां जाए। हजरत मूसा ने उनकी सलाह को स्वीकार करते हुए खामोशी से अर्ज़े मदियन की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन पहुंचना और क़याम। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक चश्मे के पास एक हौज नजर आया जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। कुछ दूरी पर दो औरतें थीं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के पास अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मामला है, जिस पर वे बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। इसे सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सबको हटाकर बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतों में से एक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आकर कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया था और उसका उजरत देना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमल को उजरत के लिए नहीं किया था, लेकिन उन्हें शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी, इसलिए वे उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उन्हें मजदूरी पर रख लें क्योंकि वे ताकतवर और ईमानदार हैं। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के रूप में साल की मजदूरी दी। उन्होंने कहा कि अगर साल कर लें तो ये बेहतर होगा, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साल पूरे किए। साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी पत्नी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी बहुत थी और रात अंधेरी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और जब वे और करीब आए तो उन्हें उस दरख्त से आवाज सुनाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत सारे फायदे हैं। फिर आदेश दिया गया कि उसे नीचे जमीन में डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को नीचे गिराया, सांप बनकर दौड़ने लगा। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरकर भागने लगा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद किया कि मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अपना हाथ अपने गरेबान में डालो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो उसका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोज़े दिए थे। फिर अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लोगों को बहुत सरकश और नाफरमान ठहराया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ से अपनी जुबान की गिराह खोलवाई और अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ। तब दरबानों ने उन्हें अंदर जाने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी। तब फिरौन ने पूछा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो आसमान और जमीन की सारी चीजों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने सभी दरबारियों से मुखातिब होकर कही थी। फिर फिरौन ने कहा कि अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां दिखा। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मौजे पेश करें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी तो वह अजहा बन गया और अपने गिरेबान से हाथ निकाला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा कि ये तो जादू के सिवाय कुछ नहीं है और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त सबसे सामने दावत पेश करने का इंतजार था। मुकाबले का दिन तय हो गया था। फिरौन ने जादूगरों को चुना और घोषणा की कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को उसके जादू से हराएगा उसे बहुत पैसे मिलेंगे। मुकाबले का दिन आ पहुंचा और लोग मैदान में इकट्ठे होने लगे जहां 40 जादूगरों की टोली मौजूद थी। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जगह पर वहीं डालने को कहा जहां उसने डाला था। फिर जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया।
देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी, लोगों के नजरों पर जादू कर दिया, गोया वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही कहा कि यकीनन तू ही जीतेगा और तेरे पास जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली तो रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने ये चमत्कार देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। सभी जादूगर सजदे में गिर गए और बोले कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। जब फिरौन ने देखा कि सभी जादूगर ईमान ले आए हैं तो उसने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम पर बिना पूछे ईमान कैसे लाया। फिर उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू किया है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें खजूर के पेड़ के तन पर लटका दूंगा। इस पर जादूगरों ने कहा कि तुम जो करना चाहते हो कर लो, हम तुम्हें रोकने वाले नहीं हैं। तुम दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर नाउ मोज़े अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती थी, तब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते और अजाब टल जाता था, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सबके सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के अज़ीब घर में मौजूद है। से किस्से हैं, लेकिन ये मुख्तसर से किस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फिरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। अल्लाह इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमाए। हम